Sir, he is presiding today's meeting. My colleague CHP office bearer and dynamic AGS Shri Niranjan Sahuji, our dynamic circle secretary Shri Jagdish Rautji, our circle treasurer Shri Vijay Kumar Maharana sir, all the respected CWC members, CEC members, district secretaries, all the office bearers present here. Thanks. First of all, I am very thankful to Wood for inviting me in this circle conference. Also, I am very thankful for from my all CHQ body members that you have supported for this unanimous body election in the last AIC held as result. So a special role of Odisha circle is there. So from whole body, I am very much thankful to all of you. Our GS is also join us after some time. Today he may not join, but tomorrow he is definitely join us. And as this circle conference, and I have seen the achievements shown by our dynamic circle secretary Jagdish Rautji here. Friends, we have faced a lot of challenges in the last 2 years, especially after VRS. A number of challenges are in front of BSNL as well as in front of our SNEA, and I am very thankful to all BSNL executives and non-executives that we have beared a loss of around 80,000 members after VRS of such a great shock for the whole organization. We are able to manage our work and streamline the work in that difficult situation. Even we have faced situation of the corona. So we all are very special role for the betterment of the not only for the BSNL. We have played a very great role for the betterment of the mankind and serving the mankind at the COVID pandemic time. So congratulations to all of you, and that good work of our reflected as the 2 revival packages. Because what happened, when we have given something for the betterment of the mankind, government also recognized work of BSNL during pandemic, when all other organizations and all other people are in the fear that they may lose their life. But our BSNL members, our BSNL, all the active members, not only active members, each and every BSNL employee is present to serve the mankind in that duration. And that's why government recognize our that noble cause, and we are in a very good situation from the last 2-3 years as compared to that. आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझते हैं? तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जो लास्ट पैंडेमिक में काम किया, तो हमारा अच्छा काम हम लोगों को रिटर्न होके दिखा. हम लोगों को रिवाइवल पैकेज के रूप में एक अच्छा BSNL को पैकेज गवर्नमेंट ने दिया. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के मन में आ गया और उन्होंने पैकेज दे दिया. उसके पीछे आप लोगों का सबका लगन, आप लोगों का सबका जो आप लोगों ने डिवोशन दिया है, उसके कारण हम लोगों को ये रिवाइवल पैकेज मिला है. आप और अगर हम लोग इमेजिन करें, लास्ट 2 ईयर का सिचुएशन था कि जब हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा था. बहुत सारे हमारे जो यंग एज के साथी हैं, है ना, वो ये सोचने लगे थे कि मेरा जो मकान का किस्त है वो कैसे होगा, बच्चों का एजुकेशन फीस कैसे पे होगा. जो हमारे सीनियर साथी हैं, उनके जो बच्चियां हैं, मान लीजिए मैरिज के स्टेज में थी या फिर उनका हायर एजुकेशन का स्टेज था, तो सारे हमारे सीनियर साथी सोच रहे थे कि वो किस तरीके से सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी. पर आप लोगों की ये अगर इसमें तारीफ करना पड़ेगा कि हमारे BSNL के सारे एम्प्लॉइज इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि उन्होंने अपने निष्ठा से और अपने काम से इस BSNL को वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आए. गवर्नमेंट को उन्होंने ये सोचने पे मजबूर किया कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में, आप लोगों ने तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में आप लोगों ने झेला है. यहाँ पे आप लोगों के स्टॉर्म्स आप लोगों ने फेस किए, जम्मू कश्मीर में हमारे साथियों ने भूकंप की सिचुएशन फेस की है. तो इस तरीके की सिचुएशन पूरे इंडिया में जब भी आई है, तो BSNL उसमें, BSNL के कर्मचारियों ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है उस सिचुएशन से ऊपर आने के लिए.
तो ये सारी चीजें हम लोगों का जो काम है वो निश्चित हम लोगों के लिए बहुत अच्छा परिणामदायक रहा। और हम लोगों को गवर्नमेंट ने रिवाइवल पैकेज दिया। बहुत सारे हमारे साथियों के बीच में मन में ये भी शंका रहती है कि अगर 4G हम लोगों को टाइमली मिल गया होता तो डेफिनेटली आज BSNL की सिचुएशन कुछ और होती। तो निश्चित वो तो एक फैक्ट है, हम लोगों को स्वीकारना पड़ेगा कि अगर 4G पहले मिलता तो हम लोग आज से बेटर स्थिति में होते। पर एक सेकंड थॉट ये भी है कि जब हम लोगों के एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी तो उस समय पे लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए क्या हमारी कंपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की BSNL इस स्थिति में था कि सारे इक्विपमेंट परचेज करता नहीं कर पाता। तो जो भी हम लोगों के यहाँ पे कहावत है, और आप तो जगन्नाथ जी के धाम में बैठे हैं, ईश्वर जो करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। उस समय पे अगर हम लोग लेते तो 4G का स्पेक्ट्रम का चार्ज भी हमको बियर करना पड़ता, 4G के इक्विपमेंट का कॉस्ट भी हमको बियर करना पड़ता। पर आज कोविड में जो आप लोगों ने स्पेशल रोल प्ले किया है उसके कारण गवर्नमेंट ने, और जो गवर्नमेंट का भी एक सपना था कि जो इंडिजिनियस इक्विपमेंट हो, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिनके पास में उनका खुद का 4G और 5G टेक्नोलॉजी है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस देश में मोबाइल असेंबल होते थे, मोबाइल यहाँ पे कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, हमारे अलग अलग पार्ट्स लाके हम लोग असेंबल करते थे, उस देश में हमारा खुद का 4G और 5G टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसका जो सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था तो वो आपके ओडिशा सर्कल में किया। तो वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इंडिया का अपना खुद का अपने 4G टेक्नोलॉजी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो 5G में भी अपग्रेड हो रहा है। और आज डायरेक्टर CFA इंदौर में आए हुए हैं, हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में, उन्होंने अभी बताया है कि नेक्स्ट 8 मंथ में हम लोग 1 लाख टावर्स हम लोगों के सारे BSNL के पास में आ जाएंगे और ऑलमोस्ट विदिन 1 ईयर सारे के टावर्स हम लोगों के इंस्टॉल हो जाएंगे। ये जो हम लोगों को 1,65,000 के करीब का रिवाइवल पैकेज मिला था, कई लोग आप और हम लोग सोचते हैं कि 1,65,000 करोड़ रुपए मिले कहाँ पे और गए कहाँ पे। तो आपको हम लोगों को सभी, आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारा जो 2G स्पेक्ट्रम का कॉस्ट जो लाइसेंस है वो 2020 में ही खत्म हो चुका है। और वो स्पेक्ट्रम भी जो है काफ़ी अच्छा स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज का BSNL को उस समय पे अवार्ड किया था। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते BSNL को 2G सर्विसेज कंटिन्यू करने का परमिशन गवर्नमेंट ने दिया और लगभग 55,000 करोड़ रुपए उसमें जो है अभी कॉस्ट है 2G स्पेक्ट्रम का, वो गवर्नमेंट ने रिवर्स किया है। हमारा जो 4G स्पेक्ट्रम है, तो 4G का स्पेक्ट्रम का कॉस्ट गवर्नमेंट ने बियर किया। इवन हमारे जो 4G के सारे भी टावर्स हैं, है ना, मतलब जो BTS है, BTS का कॉस्ट प्लस हमारे CMD सर भी काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं। तो 4G सैचुरेशन और ये 4G प्रोजेक्ट के साथ में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपीस हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड कराने के लिए, 5,000 करोड़ रुपीस हम लोगों के बैटरी पावर प्लांट को अपग्रेड कराने के नाम पे गवर्नमेंट से सेंक्शन किए। अब जो बैटरीज आ रही हैं, कुछ उसमें लिथियम आयन सेट्स भी हम लोगों को मिल रहे हैं, जो स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पे आफ्टर हम लोगों के VRS जहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शन मतलब कम रहता है, वहाँ पे हमारी जो ट्रेडिशनल बैटरी सेट्स हैं वो चोरी चले जाते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज के आने के बाद में वो हम लोगों का जो है चोरी के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने भी बैटरी पावर प्लांट आ रहे हैं, जो पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट उस कंपनी से 10 साल के AMC के साथ में आ रहे हैं। वर्तमान में क्या होता है, नए पावर प्लांट तो रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे, और कहीं कुछ इशू आता है कि मान लीजिए सपोज किसी पावर प्लांट का 6 महीने अच्छा चलेगा, 6 महीने बाद में वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण और XYZ रीजन के कारण उसके मॉड्यूल्स खराब होना चालू हो जाते थे। मॉड्यूल्स को रिपेयर करने के लिए हम लोगों के लोकल टेंडर होते थे, वो 4 मॉड्यूल में से सारे पार्ट्स निकाल के एक मॉड्यूल ओके कर देता था, बाकी 3 मॉड्यूल को नॉन रिपेयरेबल कर देता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो BSNL ने क्या किया है, ये जो मॉड्यूल अभी पावर प्लांट ले रहे हैं, ये नेक्स्ट 10 ईयर के उसी कंपनी के साथ में AMC है कि अगर आपका मॉड्यूल खराब हुआ तो कंपनी को उसको रिप्लेस करके देना है। आप उसको कैसे भी करें, अगर नॉन रिपेयरेबल हो रहा है तो आप उसको रिप्लेस करके दें, और नेक्स्ट 10 ईयर के लिए हमारा वही पावर प्लांट हमारा फील्ड में वर्किंग रहेगा। और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है स्पेशली उनका काम सुपरविजन का पार्ट
अभी अधिकतर उसमें रहेगा। ऐसे ही हमारी बैटरी सेट्स भी हैं, इवन हमारे जो 4G के BTS हैं उसके लिए भी 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट्स भी ऑल इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, और उसमें भी 4G सैचुरेशन का भी पूरा फंडिंग गवर्नमेंट लगभग 26,000 करोड़ रुपए BSNL को दिया है। स्पेशली अभी लगभग 200 स्क्वायर फीट हर जगह पे हम लोगों को BTS के लिए भी जगह अलॉट करने का गवर्नमेंट का अभी ऑर्डर्स इशू हुए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे बताती हैं कि एक दौर था जब हम लोग डरते थे कि BSNL के टुकड़े करे जा रहे हैं, कि BSNL का एक टावर कंपनी अलग BTSL बना ही दिया था, इवन एक CMD अपॉइंट कर दिए गए थे, उसका एसएमई ने भी बहुत अपोज किया था। फिर सुन रहे थे कि फाइबर कंपनी और स्प्लिट कर देंगे, तो BSNL के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे थे। पर आप लोगों के सभी के कर्मठता के कारण, पूरे हमारे BSNL के एम्प्लॉइज की कर्मठता के कारण आज देखिए गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी BSNL पे बढ़ती जा रही है। BBNL जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था कि गांव-गांव में, रूरल एरिया में हम लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए 3 कंपनियां थी, BSNL था, पावर ग्रिड थे उसमें, और एक और गेल उसमें ऑर्गेनाइजेशन था। धीरे धीरे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन पीछे हटी। फेज कुछ इनिशियल फेज BSNL ने कंप्लीट किया, उसमें अब इस मंच से मैं नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं हमारे साथियों ने उसमें आप लोगों को, हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था, और हमारे कुछ निहित स्वार्थों के कारण वो चीजें जो अच्छा रिस्पॉन्स आना था उसमें नहीं आ पाया। फिर गवर्नमेंट ने CSC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ट्राई किया। फाइनली उनको भी, गवर्नमेंट को भी ये महसूस हुआ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा भावना के साथ में, देखिए पैसे के लिए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, पर आप और हम लोग जिस तरीके से ग्रामीण एरिया में भी सेवा भावना के साथ में सर्विसेज दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली BBNL का जो हमारा नेटवर्क है पूरा इतना लगभग 6 लाख किलोमीटर उसका ऑप्टिकल फाइबर है, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन BSNL के पास में अभी ऑपरेशन आ गए, और जल्दी BBNL ऑफिशियली पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की BSNL के साथ में मर्ज हो जाए। दूसरा MTNL जो हमारे दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट कर रहा था, उसका भी ऑपरेशनल पार्ट BSNL के पास में आ गया है, और अब जल्दी हम लोग वहाँ पे भी पूरा हम लोग ऑपरेट भी करेंगे, और गवर्नमेंट ने MTNL को डिलीज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और जल्दी MTNL को भी BSNL में मर्ज किया जाएगा। उसमें हमारी एसोसिएशंस और सारे, इवन हमारे CMD साहब का भी बड़ा स्पष्ट मत है कि MTNL को आप मर्ज कर दीजिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और जो MTNL की लाइबिलिटीज है, उस पे जो कर्ज है वो BSNL पे नहीं आना चाहिए। जैसे तैसे हमारी स्थिति अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, अगर आप उसका असेट के साथ में अगर उसकी लाइबिलिटी भी BSNL को देंगे, तो BSNL पे एक बहुत बड़ा बर्डन उसमें आ जाएगा। और होपफुली MTNL का ऑपरेशन और सारा पॉजिटिव चीजें हम लोगों के पास में आएगा, जो निगेटिव चीजें हैं वो गवर्नमेंट खुद उसका बियर करेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सारा का सारा डिपेंडेंसी BSNL पे बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारी पिछले 2 साल की चिंताएं थी कि हमारा कुछ जो बेचारे यंग साथी थे वो तो ये सोचने लगे थे कि सेकंड ऑप्शन कि कुछ और जगह जॉब ढूंढा जाए क्या, कि कम से कम कुछ हम लोग उसमें आए, पर ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की सभी की मेहनत से आज की डेट में BSNL बड़ा पॉजिटिव स्थिति में है। और जैसा कि अभी निरंजन जी और हम लोगों ने लास्ट मीटिंग भी अटेंड किया था, हमारा मैनेजमेंट बहुत होपफुल है कि लगभग 2026-27 या उसके पहले की स्थिति में भी BSNL 100% एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में उभर के आ सकता है। इसके अलावा आप में से जो EV सेक्शन में काम करते होंगे हमारे साथी, जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी सर्विस यूटिलाइजेशन का एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको BSNL की सर्विसेज यूज करना है, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज मिला है। अभी रिसेंट में हमारा इंदौर का एक यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो अभी तक जियो की सर्विस यूज कर रहे थे, और अभी मैंडेटरी सर्विस के तहत हम लोगों ने उनको अप्रोच किया, तो लगभग 20 लाख रुपए पर ईयर का हम लोगों का उनका कुछ जो लीज लाइन है वो एक यूनिवर्सिटी से हम लोगों को मिल गया। ऐसी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जहीं से हम लोगों को BSNL को पॉजिटिव रेवेन्यू के मामले में चीजें मिल रही हैं। तो आप और हम लोग उसको और इफेक्टिव यूटिलाइज करके BSNL को और आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथी बता रहे थे कि आप उड़ीसा में, स्पेशली भुवनेश्वर में, तो कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं
वो करोड़ों रुपए बीएसएनएल के सर्विसेज के बदले में मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सभी पार्टनर हैं कि निश्चित ईवी सेगमेंट में भी हम लोग और उसमें आगे बढ़ेंगे और निश्चित बीएसएनएल का भविष्य हम लोगों का सुधरेगा। अब मैंने शुरुआत बीएसएनएल के भविष्य से की क्योंकि बीएसएनएल के भविष्य के साथ में आप और हम लोगों के सारे मुद्दे और हमारा सारा भविष्य उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक का तो पार्ट हो गया बीएसएनएल का। जो हमारे सारे इश्यूज हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारी जो आप लोगों की सीसी मीटिंग का पार्ट हुआ उसमें बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने डिस्कस किए। अभी निरंजन साहू जी ने भी आपको स्पीच दिया तो उसमें भी उन्होंने पूरा आप लोगों को बताया होगा कि लास्ट सीएचक्यू मीटिंग में मैनेजमेंट से किस तरीके से डिस्कशन हुआ और किस तरीके से चीज़ें हम लोगों की फेवर में आती जा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को नए सीएचक्यू को कमांड आप लोगों ने हैंडओवर किया था उस समय पे हम लोगों का एक हंगर फास्ट का एजुकेशन चल रहा था। उसमें से उड़ीसा के भी कई साथियों ने आके उसमें वहाँ पे योगदान दिया था। तो वो सारे चैलेंजेस थे। आपको सबसे पहले तो मैं पुनः ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो नई बॉडी बनाई सीएचक्यू का तो एक बहुत ही अच्छी बैलेंस बॉडी बनाया। उसमें हमारे सीनियर साथी भी हैं जिनको काफ़ी अच्छा अनुभव है। उसमें मतलब समझिए उनको होश रहता है क्योंकि बाकी जो नए लोग रहते हैं उनमें जोश रहता है और वो जोश में कोई गड़बड़ नहीं कर पाए तो उनको साथ में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सारे सीनियर साथी भी उसमें अवेलेबल हैं और जो बीएसएनएल की भर्ती की हुई वो भी साथी उसमें अवेलेबल है। पहली बार निरंजन साहू जी के माध्यम से अभी तक हम लोग जो अकाउंट्स टीम है उनका एक अलग से हम लोग वहाँ पे सीएचक्यू एडवाइजर अपॉइंट करते थे। पहली बार मेन सीएचक्यू बॉडी में अकाउंट्स टीम आए हैं और उसमें भी हमारे निरंजन साहू जी हैं, आपके उड़ीसा सर्कल से हैं तो आप उसके बधाई के पात्र हैं। और उड़ीसा से हमेशा से ही काफ़ी मतलब अच्छे लीडर्स बीएसएनएल को मिले हैं, अच्छे अच्छे काम करने वाले हमारे व्यक्ति मिले हैं। हमारे अगर हम लोग बात करें इससे पहले बिस्वाल सर थे तो बिस्वाल सर भी हम लोग उनको एक क्रांतिकारी नेता के रूप में दिखते हैं कि उन्होंने भी न केवल उड़ीसा को अच्छे से संभाला, इवन पूरे एसएमई को में भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उनके बाद में जगदीश राव जी को जवाबदारी मिली, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इवन जो नई सीएचक्यू बॉडी बनी है उसमें आप उड़ीसा के माध्यम से, उड़ीसा के मेंबर्स के माध्यम से उन्होंने इस नई सीएचक्यू बॉडी को बनाने में, यूनानिमस बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए वो हमारे लास्ट बॉडी में एजीएस भी रहे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने एक मतलब था विश्वास सर का ये था कि सर्कल में अभी मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है कि बीआरएस के बाद के सिचुएशन को प्रॉपरली टेकअप कर पाए। तो उन्होंने फिर उनसे सारा निर्णय किया, परामर्श किया और फाइनली सीएचक्यू की पोस्ट छोड़ के उन्होंने यहाँ पे सर्कल का पोस्ट ज्वाइन किया। सर्कल सेक्रेटरी की जवाबदारी आप लोगों ने सभी ने दी है और मुझे जिस तरीके से अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ा है और लास्ट अभी हम लोगों का सीएचक्यू के टेन्योर में जो भी आप लोगों के ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी उड़ीसा के से रिलेटेड इश्यूज हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से जगदीश जी ने सारे सीएचक्यू को उन इश्यूज को रेज किया है। चाहे उसमें हो सकता है कि थोड़ा डिले हुआ हो क्योंकि जो रोटेशनल ट्रांसफर है, देखिए ट्रांसफर पॉलिसी 2008 से बनी हुई है, उसमें 2008 से क्लियरली मेंशन है कि किसी भी पोस्ट पर मैक्सिमम 4 ईयर काम कर सकते हैं, किसी भी सर्कल में किसी भी आपकी लोकेशन पे मैक्सिमम 10 ईयर काम कर सकते हैं, किसी भी सर्कल में 18 ईयर काम कर सकते हैं। पर ये एसएमई की लीडरशिप थी, एसएमई के सीएचक्यू का जो भी था उस समय का दबाव था कि मैनेजमेंट कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। हमेशा एसएमई ने यही चीज़ कहा है कि आप नीड बेस्ड ट्रांसफर कीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं पे कमी है, आप जहाँ एक्सेस है वहाँ से कमी पे लेके आ जाइए। पर हमारे कुछ साथियों का ही अगर हम लोग बात करें कि लास्ट जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय पे कुछ हमारे ही साथियों की असंतुष्टि रही होगी कि एक कुछ बोले या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा या सारी चीज़ें थी या हमारी लीडरशिप से उस समय आप लोगों की अपेक्षाएं कहीं ज़्यादा रही होंगी, वो इश्यूज नहीं सॉल्व हो पाए। तो ऑलमोस्ट लगभग 350 वोट से हम लोग एसएमई मेजोरिटी के बजाय सपोर्ट एसोसिएशन में हम लोग आए और उसका खामियाजा
सिर्फ एसएनए के मेंबर्स ही नहीं, पूरी एग्जीक्यूटिव फ्रेटर्निटी ने उसका खामियाजा भुगता है। आप और जितने भी यहाँ पे बैठे सभी लीडर्स हैं, सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि मैनेजमेंट 2015 से रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट करने जा रहा था। उसके लिए कई कमेटियां भी बनी थी, खान कमेटी भी फॉर्म हुई थी और उसमें सभी से फीडबैक लिए जा रहा था। पर एसएनए की लीडरशिप क्योंकि उस समय पे टॉप पोजीशन पे थी, तो रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एसएनए का बड़ा क्लियर डिमांड था कि जब भी आप रिस्ट्रक्चरिंग पे जाएंगे तो वैकेंसीज का शॉर्टेज रहेगा, और वैकेंसीज का अगर शॉर्टेज है तो प्रमोशन, देखिए प्रमोशन से हो सकता है कि हम लोगों को पैसा बढ़े या नहीं बढ़े, पर मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है, हमारे परिवार में, समाज में हम लोगों को एक सम्मान मिलता है। तो उसके लिए एसएनए ने डे 1 से कहा था कि आप अगर रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले आपको वैकेंसी बेस्ड सिस्टम से पोस्ट बेस्ड सिस्टम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को सभी को क्लियर आ रहा है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पोस्ट बेस्ड सिस्टम के लिए एसएनए लड़ाई लड़ रही थी और अल्टीमेटली हम लोग 2018 में सक्सेस भी प्राप्त किए। जो टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी था सीपीएसयू कैडर हायरार्की, उसको मैनेजमेंट पीईआर के नाम से उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, बोर्ड से उन्होंने अप्रूव कर दिया, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कुछ उसमें रिजर्वेशन इश्यूज को लेके डीओटी के पास में बीएसएनएल मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए पहुंचाया था। क्योंकि डीओटी ने उन क्लैरिफिकेशन को समय पर नहीं दिया, तो हो सकता है कि हमारे उस समय के जो भी साथी उनकी नाराजगी रही होगी, तो उसके कारण अल्टीमेटली हमने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सत्ता सौंप दी, जो कि उस प्रमोशन पॉलिसी को के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी एग्जीक्यूटिव है, मान लीजिए कोई एक नया जेटीओ या जेओ आया है, वो 15 साल में एजीएम बन जाए। आज आप लोग कब से जेटीओ बने हैं, और आज की डेट में कई साथी आपके सिर्फ एसडी हैं, कुछ जो हमारे जेओ हैं वो एओ पे ही अभी रुके हुए हैं। तो आप लोगों को भी दर्द वो फील हुआ होगा। आप लोगों का दर्द दूर करने के लिए वही पॉलिसी लाई गई थी कि हर 5-5 साल में आपको अपना रेगुलर प्रमोशन मिलता जाएगा, और उसमें इस चीज का भी पूरा ध्यान रखा गया था कि जो हमारे सीनियर साथी हैं, कि मान लीजिए कोई जेटीओ है, उसने 10 साल तक जेटीओ में काम किया है, तो उसके कारण उनका जो स्केल E1 से बढ़ के E2, E1, E3 ग्रेड पे लग गए। तो जो ऐसे हमारे ऐसे सीनियर साथी रहते, उनको पहला प्रमोशन तो इमीडिएट मिल जाता। उनका अगला जो प्रमोशन है 5 साल की बजाय, सपोज मान लीजिए अगर कोई E3 स्केल पे रहते, तो उनको वो प्रमोशन आपका 5 साल की बजाय 4 साल में मिल जाता। अगर कोई हमारे साथी E4 ग्रेड पे आ गए थे, तो उनको वो प्रमोशन 5 साल के बजाय 3 साल में मिल जाता। यानी कि लगभग आपका 1 जुलाई 2018 से वो इम्प्लीमेंट हो रही थी। 1 जुलाई 2018 से आप अपना इमीडिएट नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाता, और ऑलमोस्ट 2021-22 में आप लोगों को अपना सेकंड प्रमोशन मिल गया होता, और अब थर्ड प्रमोशन अपना रेगुलर जो भी है, मान लीजिए जो एजीएम है, मतलब जो उस समय जेटीओ थे वो एजीएम के लिए वेट कर रहे होते, जो एसडी हैं वो एजीएम बन के अपना टेन्योर पूरा कर रहे होते डीजीएम प्रमोशन के लिए। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों ने पेशेंस लूज किया। हमको उम्मीद थी कि नया कोई बदलाव आएगा, तो हो सकता है कि उससे कुछ हो। तो बदलाव भी आप लोगों ने, हम लोगों ने सभी ने अच्छे से चट लिया कि ना तो वो टाइम बाउंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाई, दूसरा रिस्ट्रक्चरिंग जिसको हमने रोक के रखा था, रिस्ट्रक्चरिंग भी अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट हो गई। और जिसकी आशंका थी हमारे लीडर्स को, उस समय के वेटरन लीडर्स को, कि इसके आने के बाद में वैकेंसीज का बड़ा क्रंच रहेगा, तो वैकेंसीज भी आज की डेट में आप और हम लोग देख रहे हैं कि उसकी शॉर्टेज के कारण बहुत सारे हमारे प्रमोशन अभी भी पेंडिंग हैं। दूसरा, मैनेजमेंट ने अभी मेरिट बेस्ड सिस्टम पे आगे बढ़ रहा है, एमएसआरआर पे आगे बढ़ा है। उसमें भी आप लोगों ने बहुत सुझाव दिए थे, एसएनए ने भी उन सुझावों को आगे मैनेजमेंट को पहुंचाया कि मैनेजमेंट हर लेवल पे अब एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। कि आपका एजीएम का भी प्रमोशन के लिए कुछ उसमें एलडीसी कोटा रखा है, आपका डीजीएम प्रमोशन के लिए भी कुछ एलडीसी कोटा रखा है। हम एग्जाम के विरोधी नहीं है, पर अगर आप लोग इस बीएसएनएल में देखेंगे कि आज तक कभी भी जो एग्जाम्स है वो समय पे हो ही नहीं पाए। इवन आप देखेंगे कि जेटीयू टू एसडी प्रमोशन है, उसकी वैकेंसी 2010-11 से लेके आज 22-23 पूरा ओवर हो गया। लगभग 12 साल में एक भी उसका उन वैकेंसीज के लिए एलडीसी कंडक्ट नहीं हो पाया। तो जो एक हमारा ट्रेडिशनल चैनल था
कि मान लीजिए आज की डेट में 1200 डीजीएम के हम लोगों को प्रमोशन के चांस है, तो 1200 हमारे डीजीएम रेगुलर बन सकते थे। पर आज की डेट में उसमें भी एलडीसी का हम लोग ऑप्शन लेके आए हैं। हमारे को सीएमडी सर ने कहा था 1 जनवरी को, पहले एश्योरेंस मिला था कि हो सकता है कि 1 जनवरी को हम लोगों का पूरा इस तरीके से डिक्लेयर हो जाए कि एलडीसी कब अनाउंस होंगे, हम लोगों की एससीएफ कब होंगे, वो पूरा हम लोगों को एक सारा जारी करना था और वो काम नहीं हो पाया जनवरी तक। जनवरी में सीएमडी सर ने उम्मीद जताई थी कि जनवरी एंड तक पूरा वो लिस्ट सारी चीज़ें डिटेल्स जारी होंगे, और अभी मार्च एंड आने वाला है, अभी तक वो लिस्ट हम लोगों की सारे एग्जाम्स का सारा टाइम टेबल इस तरीके से जारी नहीं हो पाया। तो जब लिस्ट बनने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो एग्जाम्स क्या होंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आज की डेट में फील्ड में हमारा जो 55 से 56 साल का व्यक्ति है, जिसने इंजीनियरिंग या उसका जो भी एजुकेशन है, आज से लगभग 20 से 30 साल या इवन 25 साल से भी ज़्यादा समय उसने उन पढ़ाई को छोड़े हुए हो गया है, तो आज की डेट में वो किस तरीके से उसको कॉम्पीट कर पाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों के सारे एग्जीक्यूटिव्स के मन में एक चिंता का विषय है, तो उसको भी हम लोग सीएचक्यू लेवल पे टेकअप कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो हमारे प्रमोशंस पे अगर लोग सबसे पहले आए, तो जो एडॉप डीजीएम्स हैं उनका रेगुलर डीजीएम में प्रमोशन का अभी जो है लगभग 160 के करीब ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, तो उतने प्रमोशन की पूरी संभावना थी। पर एक पुराना एक कोर्ट केस था चंडीगढ़ में, उसमें से जो पहले साथी है पिटिशनर है, उनकी शायद डेथ हो गई है, और बाद के जो 2 पिटिशनर्स थे उन्होंने वीआरएस ले लिया। पर चूंकि कोर्ट ने कोई एक डायरेक्शन दिया था, तो हमारे यहाँ से लीगल ओपिनियन बीएसएनएल ने लिया, और लीगल ओपिनियन में ये आया कि कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही ये प्रमोशन जारी किए जा सकते हैं। तो वो पूरी उम्मीद है कि अभी हम लोगों का उसका मार्च में 1 मार्च को उसका हियरिंग था, और अब वो 10 अप्रैल पे गया है। 10 अप्रैल को उम्मीद है कि वो हम लोगों का जैसे ही वहाँ से कोर्ट परमिशन देगा, तो हम लोगों के प्रमोशंस वो भी चांसेस हैं। और उसके पहले भी मैनेजमेंट अगर लीगल ओपिनियन लेके अगर कुछ आगे बढ़ सकता है, तो पूरी सारी यूनियन एसोसिएशन और एसएन ये पूरा प्रयास कर रही है कि रेगुलर डीजीएम प्रमोशंस आप लोगों के जल्द से जल्द हो। फिर बात आती है कि जो हमारे 2018 में साथी बने थे, जो एजीएम बने थे, उनका डीजीएम प्रमोशन का क्या होगा। तो उस पर मैनेजमेंट का अभी रिप्लाई है कि चूंकि कोर्ट ने एक प्रोविजनल टैग दिया था कि वो प्रमोशन सारे प्रोविजनल थे, और उससे रिलेटेड कुछ कंटेम्प्ट भी बीएसएनएल पे लगा था, वो बीएसएनएल ने फिर उससे बचने के लिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 150 ऐसे केसेस हैं जो उसी तरह के मैटर्स थे। तो वो सारी एसएलपी मिला के 1 to 1 सुप्रीम कोर्ट उस पर सारा निर्णय अपना भविष्य में देगा। तो एक संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते से ही वो चीज़ क्लियर होगा। दूसरा, एसोसिएशन की ओर से एक और सुझाव दिया गया है कि हम ऑनरेबल चंडीगढ़ कैट में ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाएं, कि जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक हम लोगों का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, आप सब्जेक्ट को आउटकम ऑफ कोर्ट करके भी प्रमोशंस कर सकते हैं, तो उसकी परमिशन हम लोगों को दी जाए। तो अगर ऐसा होता है, तो जो 2018 में हमारे सारे साथी थे जो कि एजीएम बने हैं अभी, तो वो उनके रेगुलर डीजीएम बनने का प्रमोशन का रास्ता खुलता है। फिर हमारे एजीएम प्रमोशन की बात की, एसडी से एजीएम प्रमोशन में, तो उसमें तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि 19 तो हमारे प्रमोशंस अभी गो थ्रू हुए हैं, उसमें से कई हमारे उड़ीसा के भी साथी होंगे, तो सारे प्रमोटेड साथी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और उन 1900 जो हमारे साथी हैं, उसके अलावा हमारे स्पेशली लिस्ट 12-13 के जो साथी हैं, जिनका सीनियरिटी को लेके पहले वो उनके साथ में थे, फिर कोई कोर्ट के डायरेक्शन के कारण उनको लिस्ट 12-13 में डाल दिया, तो उनके भी प्रमोशन एवेन्यूज को लेके उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं, अभी उतनी वैकेंसीज नहीं है, तो उनके लिए भी एसएनए पूरा प्रयास कर रही है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग में हम लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उसके बेस पे हमारे मैनेजमेंट उन रिस्ट्रक्चरिंग को रिव्यू करें। और जैसे कि 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, 1 लाख बीटीएस अगर लगते हैं, तो 1 लाख बीटीएस के लिए रूरल एरिया में स्पेशली लगभग 40 बीटीएस पे एक एसडी या जेटीयू जस्टिफाइड होता है। तो 1 लाख अगर बीटीएस हम लोगों के नए बीटीएस इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उनके सुपरविजन के नाम पे हमारे एजीएम भी पोस्टें बढ़ेंगी, उसमें हम लोगों के एसडी पोस्टें भी बढ़ेंगी, उसमें हमारे
जिनकी पोस्टें भी और बढ़ेंगी। इसी तरीके से जो भारत नेट है कि लगभग 6 लाख किलोमीटर का फाइबर है, उसका सुपरविजन किस तरीके से कर पाएंगे। भारत नेट का भी एक रिस्ट्रक्चरिंग का भी और उनका भी स्टैंडर्ड कुछ बीएसएनएल ने ऑलरेडी दे दिया है। तो वो जो अभी स्ट्रक्चर आया था उसका पूरा खर्चा यूएसओ देगा। तो वो स्ट्रक्चर तो डीओटी ने डिफाइन किया हुआ है और बीबीएनएल का स्ट्रक्चर है, उसमें अभी हो सकता है आपके यहाँ से भी कुछ लोगों को भारत नेट में पोस्टिंग भी दिया होगा। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया उनको पोस्टिंग भी उसमें दिया जा रहा है। तो उसी में जिस तरीके से भारत उद्यमी और भी जो हम लोगों के नए कनेक्शन से नए सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बेस पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट से कि आप वैकेंसीज बढ़ाएं, जिससे कि हमारे जो एलजी प्रमोशन है वो भी फर्दर हो सके। तो ये तीसरा इशू है हमारा जेटीओ से एसडी प्रमोशन का। तो मैं इस मन से माफ़ी चाहूँगा, पहले तो हमारे जो भी हमारे जेटीओ टू एसडी प्रमोशन एस्पिरेंट है, स्पेशली उड़ीसा के, लगभग फरवरी मंथ में आप लोगों को एक इंक्रीमेंट का चांस था कि आप लोग लास्ट मंथ अगर सही समय पे प्रमोशन होता तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल सकता था, पर अब वो नहीं लग पाएगा क्योंकि उसमें कुछ एसडीआरआर के इश्यूज थे। जैसा कि आरआर में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कुछ नए लोगों को सत्ता सौंपी थी। जब हम लोगों का सीपीएसयू कैडर हायरार्की का जो बोर्ड ने अप्रूवल दिया था, उसमें 5 ईयर की कंडीशन था कि 5 ईयर में, हर 5 ईयर में रेगुलर प्रमोशन होगा। उन्होंने आने के बाद में एसडीआरआर बनवाया, एसडीआरआर में 12 ईयर का कंडीशन करवाया, 5 ईयर की बजाय 12 ईयर का कंडीशन कराया। 12 ईयर में भी व्यक्ति का रेगुलर प्रमोशन नहीं होगा, 12 ईयर भी आपका पर्सनल अपग्रेडेशन के बेस पे होगा और 12 ईयर के बाद में आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी आ जाएगा कि आप रेगुलर एसडी भी नहीं बनेंगे, आपको आपके सर्कल से बाहर जाने का लाइबिलिटी भी आ जाएगा और रेगुलर एजीएम बनने के लिए आपको या तो फिर से जेटीओ टू एसडी सीएफ या एलडीसी आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसी थी, उस पर एसएमए का भी विरोध था कि 5 ईयर की बजाय आपने 12 ईयर क्यों किया, और दूसरा उसमें सेवा का भी कुछ अपने विरोध थे। फाइनली वो आरआर अब वापस आ गया है बीएसएनएल के पास में, डीओटी ने रिव्यू करने का बोला है कि आप इसको रिव्यू कीजिए और रिव्यू के साथ में अब बीएसएनएल मैनेजमेंट उसको किस तरीके से आरआर को मॉडिफाई करता है या रिव्यू करता है। एक बार एसडीआरआर जब रिव्यू हो जाएंगे उसके बाद में हमारे जेटीओ टू एसडी प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। हमारे अकाउंट स्विंग में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अकाउंट स्विंग में एक चूंकि कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके कारण हमारा सीओ के जो प्रमोशन से वो हेल्ड अप है। जेओ टू एओ प्रमोशन, जैसे ही आपका एओ टू सीओ प्रमोशन होगा, हमारे जेओ टू एओ प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी आप और अधिकतर लोग जो हैं, जैसे निरंजन साहू जी की अगर हम लोग बात करें, ये अपना जेओ बनने के बाद में 3 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, एओ बन सकते हैं। जिससे कई हमारे साथी हैं जो अपने नेक्स्ट प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। मेन हर्डल जो सबसे ज़्यादा प्रमोशंस में आज की डेट में है वो रिस्ट्रक्चरिंग का है कि मैनेजमेंट ने जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमारी जो वैकेंसीज तेजी से कम हुई है, तो उन वैकेंसीज की शॉर्टेज के कारण चांसेस ऑफ प्रमोशन हम लोगों के बहुत कम हो रहे हैं। तो उसको भी एसोसिएशन अपने लेवल पर पूरा टेकअप किए हुए हैं और जल्दी कुछ अगर रिस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट खुद भी डायरेक्टर चार्ल्सन ने लास्ट मीटिंग में बताया है कि वो रिस्ट्रक्चरिंग को रिव्यू करने जा रहे हैं और अगर उसमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारी वैकेंसीज बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि नया भले ही कोई रिक्रूटमेंट नहीं करें और जो हमारे साथी ऑलरेडी अपने जिस पोस्ट से ज़्यादा का सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए उनको उनका डेजिग्नेशन और रेगुलर प्रमोशन चाहिए, उसका हम लोगों का डिमांड है और होपफुली हम लोग उसमें कामयाब भी होंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये बात हम लोगों का प्रमोशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद में सब आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इसके अलावा फिर कौन सा इशू आप लोगों का आता है? पीआरसी जी, वही मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा था। देखिए पीआरसी को लेके अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हलचल तेज हुई है। जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनके लिए अभी जो है वर्किंग ऑफिसर से डीलिंग करने का भी कुछ एक प्रस्ताव भी जहाँ तक के पारित हुआ, उसमें और क्लैरिटी अभी आएगा। और पूरी संभावना है कि जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनको पेंशन का रिवीजन उसमें लग जाए। पर आप लोग सोचिए कि क्या बिना बीएसएनएल में कोई स्केल तय किए हुए रिटायर्ड साथियों को प्रमोशन मतलब पीआरसी लग पाएगा क्या?
मान लीजिए कोई व्यक्ति 2018 में रिटायर हुआ या 2020 में बीआरएस लिया या उसके बाद में कभी रिटायर्ड हुए, तो उनको अगर आपको पीआरसी देना है तो 2017 में कुछ स्केल में तो चेंज करना पड़ेगी। तो स्केल क्या सिर्फ रिटायर्ड के चेंज हो जाएंगे, वर्किंग के चेंज नहीं होंगे। स्केल तो जहां तक हमारा आकलन है कि स्केल गवर्नमेंट को फाइनलाइज करने पड़ेंगे। जब स्केल डिसाइड होंगे तो हमारी आधी लड़ाई तो वैसे ही हम लोग जीत चुके होंगे। और देखिए, मैनेजमेंट के लिए या गवर्नमेंट के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज को पीआरसी देना तो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अभी जैसा कि कुछ आप हमारे साथी बोल भी रहे थे कि जो मैनेजमेंट की या गवर्नमेंट की नज़र में हमारी एसोसिएशन या फिर यूनियन एसोसिएशन को लेके जो छवि बनी हुई है, हो सकता है उसका भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अब सुधर रही है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्दी पीआरसी पे भी हम लोगों को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। हमारी जो लीडरशिप है, अतुल सर हैं, वो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो वो पॉलिटिकल लेवल पे भी इन इश्यूज़ को परस्यू कर रहे हैं। उसमें हमारा थर्ड पीआरसी का भी इशू है, उसमें हमारे जो स्टैंडर्ड पे स्केल का जो हमारे साथी हैं जिनको पे लॉस हो रहा है, तो उनके जो उसको जहाँ तक एक तरीके से हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कंपनसेट कर सकते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड पे स्केल का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो भी जहाँ तक मिनिस्ट्री के माध्यम से उसमें कुछ सॉल्व हो सकता है, तो उन्हीं आगे परस्यू कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है हम लोगों के, तो जल्दी नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर बहुत कुछ उसमें परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, देखिए पीआरसी को एक हमारे आज की डेट में हम लोग सपना माने, और जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, उसमें फाइनेंशियल चीज़ों में क्या आता है कि आपका जैसे टीएडीए है, आज की डेट में 150 रुपये में आप कहीं भी किसी गांव में भी एक होटल में जाकर देख के रुक के बता दीजिए, कहीं पे भी आपके लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप इतने कम पैसे में कहीं पे जाएं। स्पेशली अभी 4G सैचुरेशन के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को फील्ड में जाना पड़ रहा है, जाने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आपका जो टीएडी है वो कहीं भी आज की सिचुएशन से मेल नहीं खा रहा। तो हमारा संगठन उन छोटी से छोटी चीज़ों पर भी पूरा ध्यान देता है जो आप लोग फीडबैक देते हैं। तो अभी लास्ट जो मीटिंग हुआ है उसमें डायरेक्टर एचआर सर से जो मीटिंग हुआ है उसमें एसएनए ने इस इशू को रेज किया है, और पॉजिटिव चीज़ है उसमें मैनेजमेंट ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये टीएडीए के जो रेट्स हैं इनका रिवीजन होना चाहिए, और वो भी इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे आगे आगे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इन चीज़ों पे भी हम लोगों को जल्दी कुछ आगे चेंज देखने को मिले। तो आप लोग देखिए, संगठन कोई भी हो, संगठन बनता किन से? संगठन हमारे मेंबर्स के माध्यम से बनता है, और उसमें स्पेशली रोल सबसे ज़्यादा जो आता है, देखिए सीएचक्यू का रोल कंपैरेटिव बहुत कम लोग बात करेंगे, और जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे सीसी मेंबर्स हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, सर्कल सेक्रेटरीज हैं, सर्कल प्रेसिडेंट है, सर्कल ट्रेजर, आप स्पेशली जो सर्कल लेवल पे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर से आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो आप लोग मेंबर्स के माध्यम से जो फीडबैक देते हैं वही फीडबैक हम लोगों को सर्कल सेक्रेटरी और हमारी सर्कल टीम के माध्यम से, सीडब्ल्यूसी के माध्यम से हम लोगों को सीएचक्यू पे आता है, और हम लोग उसको फिर आगे टेकअप कर पाते हैं। तो आप लोग जो एक्टिव रोल निभाते हैं उसका फायदा अल्टीमेटली आप लोगों को ही रिटर्न होके आता है। तो आप लोग चूंकि इस वर्ष हम लोगों का मेंबरशिप वेरिफिकेशन भी है, और मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हो सकता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं कुछ को किसी भी कारण से, चाहे उनका उस समय के सीएचक्यू को लेके कोई विरोधाभास हो, या सर्कल टीम को लेके कोई विरोध हो, या किसी इशू को लेके कोई विरोध हो, तो उसके कारण वो लास्ट एमवी में हम लोगों के साथ में नहीं आए। सबसे पहले तो आप लोग मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि हम लोग का एसोसिएशन का स्टेटस क्या है। आज भी आप लोगों की यूनिटी के कारण, आप लोगों की लीडरशिप के कारण एसएनए नंबर 1 है मेंबरशिप काउंट की स्थिति। आज भी हमारे 12,000 से ज़्यादा सदस्य इस एसएनए में शामिल हैं, और उसके अकॉर्डिंग मेंबरशिप काउंट अगर हम लोग करें तो नंबर 1 पोजीशन पे हमें। हाँ, लास्ट ईयर वो मेंबरशिप का हम लोगों का वोट में तब्दील नहीं हो पाए थे। तो मेरा आप लोगों का इस मंच के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सितंबर में अभी एमवीपी अनाउंस हुआ है, तो आप लोग उसके पहले हर एक हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अप्रोच कीजिए, उनका जो भी नाराजगी का कारण है वो समझने का प्रयास कीजिए।
देखिए अभी आप लोगों ने डायरी और कैलेंडर आप लोगों को मिले होंगे, तो डायरी और कैलेंडर कोई अमाउंट में कोई बड़ी चीज नहीं है ना। उसका मेन ये था कि इसी माध्यम से नए साल में आप हर एक मेंबर्स को जाके एक बार मिले, मेंबर्स आपसे मिले, आप मेंबर्स से मिले, तो कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन आपका हम लोगों का दूर हो, और उनके मन में जो भी इश्यूज हैं आप लोग लेके, अगर आपके लेवल के हैं तो आप उसको रिजॉल्व कर दें, अगर आपके लेवल के नहीं है, सर्कल के लेवल के हैं या CHQ के लेवल के हैं, तो CHQ के लेवल पे आप हमें इश्यूज को दीजिए, हम लोग उनके लिए फाइट करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप अगले MV तक पूरा अपने कमर कस के रेडी रहिए। हर एक एग्जीक्यूटिव से आप लोगों को मिलना है, उसकी जो भी नाराजगी है उसका कारण आप लोगों को समझना है, और समझ के अपने सर्कल टीम को, CHQ को उससे अवगत कराना है। हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि उनके इश्यूज रिजॉल्व हों। देखिए अगर जहाँ तक जस्टिस की बात है, तो यहाँ पे मोहपात्रा सर हैं क्या अभी? जी, तो मोहपात्रा सर के देखिए आपको हिम्मत की भी दाद देना पड़ेगी, और उनका संगठन में विश्वास है उसकी भी आप लोगों को दाद देना पड़ेगी कि लगभग 7 से 8 महीने उन्होंने पूरा संघर्ष किया। क्योंकि अगर 7 से 8 महीने अगर आप लीव पे लेते हैं, रहते हैं, और उस दौरान आप अपना आत्मविश्वास भी और संगठन के प्रति फेथ भी मेंटेन करते हैं, इनको विश्वास था कि हमारा सर्कल की जो टीम है इन्होंने हमारा इश्यूज CHQ को अवगत किया है, और उनको ये विश्वास था कि CHQ उन इश्यूज को टेकअप कर रहा है, मुझे न्याय मिलेगा। और फाइनली मैनेजमेंट के माध्यम से ही उनको न्याय भी मिला, और न केवल इनको न्याय मिला, देखिए इनकी लड़ाई बड़ी लंबी है, इन्होंने 8 महीने संघर्ष किया, पर इनका जो आउटकम आया उसके माध्यम से लगभग 700 से 800 लोगों का बेनिफिट होगा, जो एक क्लैरिटी नहीं था। तो मैं मोहपात्रा सर को पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने विश्वास अपना मेंटेन किया, और अल्टीमेटली आपने जो एक गाइडलाइन था मैनेजमेंट के माध्यम से, उसमें बड़ा क्लैरिटी आया कि 9/12/2015 के पहले अगर किसी व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर एरिया में ज्वाइन किया है, और अगर मान लीजिए 10 दिन भी काम किया है, और उसके बाद में 9/12/15 के बाद में या पुराना टेन्योर मिला के उन्होंने 3 साल से ज्यादा पूरा काम किया है, तो आपको जो सर्कल स्टे है, तो उसमें आपको सर्कल स्टे में ब्रेक मिलेगा। और जो 9/12/2015 के बाद में हमारे साथी सॉफ्टवेयर एरिया में गए हैं, तो वहां पे आप लोगों को आपका जो भी उस सर्कल का स्टे है उसमें से मैक्सिमम 3 साल आपके माइनस हो जाएंगे। उसमें भी जैसा अभी निरंजन साहू जी ने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एरिया को लेके बहुत सारे सुझाव गए थे, जगदीश जी ने भी यहाँ से बहुत सारे सुझाव भेजे थे। अल्टीमेटली उसके बेस पे हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उसमें देखिए आज मान लीजिए आपका कोरा बूथ है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको सिर्फ 3 साल का सर्विस माइनस हो रहा है, उनको सर्कल ब्रेक का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसकी बजाय कोई अच्छी जगह चला जाए, मान लीजिए उसकी तुलना में तो कोरापुट तो एक मान लीजिए आपका टफ एरिया है, उसकी बजाय किसी भी सर्कल में जाके वहां पे अपना 3 साल में ब्रेक करके वापस आ जाएगा, तो उनको सर्कल ब्रेक का बेनिफिट मिल जाता है। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपका जो मेन एरिया, सपोज मान लीजिए कोरापुट है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, या मध्य प्रदेश में झाबुआ है, खरगोन है, कि वहां पे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने सर्कल में नहीं जा रहे, वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे सर्कल में जा रहे हैं। तो जहाँ पे आपको आज की डेट में मेन पावर की आवश्यकता है, वहां पे मेन पावर नहीं मिल रहा है। तो उसी के बेस पे हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो आप पहले सर्कल ब्रेक का फैसिलिटी देते थे, सर्कल सर्विस लेंथ काउंटिंग का, वो आपको फिर से वहां पे वो ब्रेक का फैसिलिटी दिया जाए, नंबर 1। दूसरा कि अगर कोई खुद के सर्कल एरिया में काम कर रहा है, तो उनको अगर मतलब वहां पे जाके सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, तो उनको 3 साल में ब्रेक दिया जाए। अगर कोई दूसरे सर्कल का व्यक्ति आके, मान लीजिए सपोज आंध्र प्रदेश का या वेस्ट बंगाल का कोई व्यक्ति आके कोरापुट में काम कर रहा है, तो उनको 2 साल में आपका जस्ट एक हार्ड टेन्योर एरिया जो रहता है, उनको वो फैसिलिटी एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे कि जिन एरियाज में अभी मेन पावर की कमी है, लोग सेल्फ मोटिवेटेड होके वहां पे जाए। देखिए जो रोटेशनल ट्रांसफर है, पॉलिसी वर्षों से बनी हुई थी, पर क्या आज तक इम्प्लीमेंट हो पाई थी? कहीं न कहीं BSNL का जो काम था किसी भी तरीके से मैनेज हो रहा था, पर अभी जो रोटेशनल ट्रांसफर जिस तरीके से किए हैं, या उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से गलत हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रोटेशनल ट्रांसफर में उससे प्रभावित हुए हैं।
बहुत कुछ एसोसिएशन ने आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से मैनेजमेंट को अवगत भी कराए कि जिनके बच्चे अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं उनके ट्रांसफर से अगर होते हैं तो मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया। लास्ट ईयर ये एक्सेप्ट किया था कि जिनके भी बच्चे करंट जब उनका ट्रांसफर होता है अगर उस साल वो 12th में है तो उनको 1 साल का रिटेंशन मिलेगा। मेडिकल ग्राउंड जो भी लिस्टेड डिसीजेज हैं उनमें भी केसेस मिलेगा। पर अब ये परंपरा चालू हो गई, 26 साल था अब 24 पे आ गया है, नेक्स्ट ईयर वो 22 पे जाएगा। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि 18 साल तक जो हमारा इस पर पॉलिसी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए रोटेशन में कोई बुराई नहीं है, रोटेशन हम लोगों को स्वेच्छा से भी करना चाहिए, पर जो एकदम से आया कि आज तक आपने पॉलिसी तो 2008 में बना दिया और उसको सीधा आके 2022 में आप एब्रप्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आए थे। पर जी तो पूरा उम्मीद है कि अब हम लोगों के जो ये प्रॉब्लम है उसमें बहुत को जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स आया था वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रोटेशनल में आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं आप सर्कल के माध्यम से पूरा सर्कल सेक्रेटरीज को दे सकते हैं कि आपका अगर बच्चे 12th में है तो उसको आप इंटीमेट कर सकते हैं। अगर घर पे कोई मेडिकल ऐसे इश्यूज हैं और सबसे बड़ी बात है आप सारी इंफॉर्मेशन को ईआरपी में अपडेट कराइए। आजकल मैनेजमेंट जो भी डेटा ले रहा है वो ईआरपी के माध्यम से ले रहा है। अगर आपका ईआरपी में एक ऑप्शन रहता है एडिशनल डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर वहां पे आप डेटा को इम्प्लीमेंट कर देते हैं या फिर जिनके सॉफ्टवेयर में काम किया है उन पूरे को आप प्रॉपर्ली करियर हिस्ट्री में मेंटेन कर देते हैं तो निश्चित वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हम लोगों का हो गया कि जो रोटेशनल ट्रांसफर्स का प्रमोशन का इश्यूज हम लोगों को हो गया, पीआरसी का इशू हो गया हम लोगों का। इसके अलावा बाकी सारी जो चीजें हैं वो कल भी हम लोग आप लोगों से सभी से फीडबैक लेंगे, उस पर जनरल सेक्रेटरी भी अपने व्यूज देंगे। मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को जो मुझे पता था वो सारी चीजें आप लोगों को अपडेट किया है। पर बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो हम लोगों ने किसी भी कारण से लास्ट एमबी में हो सकता है कि आप किसी एक आपके साथी को अप्रोच कर सकते थे, वो हो सकता था कि वो नाराज है और उसको उम्मीद थी कि कोई मेरा साथी आके मेरे को एक बार बोल दे और आप किसी पेशोपस में आप भी उसको नहीं बोल पाए कि यार ठीक है वो तो अपने ही साथी है, वो तो अपने ही साथ में रहेगा। पर हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हमारा जो आज की डेट में हम मेजोरिटी एसोसिएशन का स्टेटस लेके रहते हैं तो जिन समस्याओं को हम लोग और अच्छे से रख पाते तो वो हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। फिर भी जो आप लोगों ने मेजोरिटी का हम लोगों को जो मेंबरशिप काउंट के बेस पे जो भी हम लोग कर सकते हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो स्पोर्ट्स कल्चरल बोर्ड है उसमें भी सपोर्ट एसोसिएशन को स्टेटस नहीं दे रहे थे तो उसमें भी अब हमारा मेंबर रहेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसमें हमारा एसोसिएशन आप लोगों की यूनिटी के दम पे बहुत अच्छा कर रहा है, भविष्य में भी बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग उसको टेकअप करेंगे। बस मेरा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के नाते आप लोगों से यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जितना इस संगठन को मजबूत बनाएंगे उतना आप खुद भी समस्याओं से कम प्रभावित होंगे और हमारे साथियों की भी जो समस्याएं हम उनको दूर कर पाएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि ये जो हमारी सर्कल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसके माध्यम से आप वापस से इस तरीके की टीम को चुनेंगे कि जो आप लोगों के मुद्दों को अच्छे से रख पा रही है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि आपकी जो भी सर्कल टीम है या जिस तरीके से इश्यूज रखे हैं वो उससे आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। तो आप लोगों के माध्यम से कल एक अच्छा निर्णय आप लोग लें जिससे हमारा संगठन और मजबूत बने, सभी वर्गों का उसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व हो और सब मिलके इस संगठन को और इस बीएसएनएल को आगे ले जाए, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। जय श्री राम।